Yes. So today we're going to start with the chapter number 5, that is magnetism and matter. First of all, we'll proceed with the comparison between इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स एंड मैग्नेटिक पैरामीटर्स. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज Q होता है तो यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक चार्ज QM, या तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ P. इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम C, मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर इंटू मीटर. बराबर. नॉर्थ पोल को जनरली पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ माना जाता है और साउथ पोल को नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ. ठीक है. दूसरा पॉइंट है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1/4πε0, जो इलेक्ट्रिक पैरामीटर में आता है. मैग्नेटिक पैरामीटर में वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो जाता है μ0/4π. ठीक है. फिर यहाँ पर हमने सीखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a. सिमिलरली ओवर हियर देयर इज अ मैग्नेटिक डाइपोल और इट इज आल्सो नोन एज बार मैग्नेट. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l. एज आई टोल्ड यू कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ एंड साउथ पोल इज नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ. ठीक है. क्लियर. सो फोर्थ पॉइंट है क्वांटिटी. Electric dipole moment P vector, so it is given as P vector equal to 2a vector into Q. तो 2a यानी distance between two charges और Q यानी magnitude of any one charge, and its SI unit is coulomb into meter. Basically it is a vector quantity, so its direction is from negative charge towards positive charge. So over here there is a magnetic dipole moment M vector, which is given as again distance between the two pole strength 2l and into magnitude of pole strength P. It is SI unit is ampere meter square, having direction from south pole towards north pole. Then in electric parameter we have studied electric force acting on electric charge due to electric field F vector equals to Q into E vector. So similarly over here magnetic force acting on a pole strength due to magnetic field F vector equals to P into B vector. जहाँ पर चार्ज था तो pole strength आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड था तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया. Then sixth quantity is electric field E vector equals to F vector by Q. SI unit is volt per meter or Newton per coulomb. So over here there is a magnetic field B vector equal to F vector by P. Its SI unit can be written as Tesla or Newton per ampere meter or else Weber per meter square. This Weber is a unit of magnetic flux. ठीक है. Then we proceed with the seventh quantity, torque acting on an electric dipole in a uniform placed in a uniform electric field at an angle theta. That is angle between P vector and E vector is theta. So tau vector equals to P vector cross E vector, therefore tau equals to Pe sin theta. Similarly over here when a torque acting on a magnetic dipole placed in a uniform magnetic field at an angle theta, so tau vector equals to M vector cross B vector, and magnitude can be given as Mb sin theta. Clear? चले तो we proceed with next point number 8. Electric potential energy stored in electric dipole placed in uniform electric field is given as U equals to minus P vector dot E vector, or magnitude wise it can be written as U equals to minus Pe cos theta. So similarly magnetic potential energy stored in magnetic dipole placed in a uniform magnetic field is given as U equals to minus M vector dot B vector, therefore U equals to minus Mb cos theta. Then next work done to move electric dipole from theta 1 to theta 2 in uniform electric field is given as W equals to Pe cos theta 1 minus cos theta 2. So over here work done to move magnetic dipole from theta 1 to theta 2 in uniform magnetic field can be given as W equals to Mb cos theta 1 minus cos theta 2. Then in electric parameter, if I want to understand electric flux, so that is phi equals to E vector dot A vector. Its SI unit is voltmeter or is Newton meter square per coulomb. So over here there is a magnetic flux. Phi is equals to B vector dot A vector. Its SI unit is Tesla meter square or Weber. Clear? Next is Gauss's law for electrostatics. Surface integration of E vector dot dA vector equals to summation Q by epsilon 0, where summation Q indicates charge enclosed by the Gaussian surface, and that will be non-zero because electric monopole is possible. Electric monopole मतलब सिंगल पोलैरिटी चार्ज, सिंगल पॉजिटिव के सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है,
बट यहाँ पर गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो. वाई इट इज जीरो? बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, मतलब कि सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल कभी हमें मिलता नहीं है. बराबर, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. फिर 12th नंबर का है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन गिवन इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसके ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. वो टेंजेंट मुझे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट पर्टिकुलर दैट पॉइंट. Similarly, over here, के direction of magnetic field at any point is given by tangent drawn at that point on magnetic field line. Clear? Next देखिए point. Now consider a Cartesian coordinate system and this black color is a dipole which is kept along z axis. बराबर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इज अपवर्ड, दैट इज पी वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, कोई पॉइंट पी यहाँ पर उसके एक्सिस पर है, तो इट इज गिवन इज ई जेड वेक्टर इक्वल्स टू 2 के पी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दी होल स्क्वायर इंटू आर कैप. बट फॉर अ शॉर्ट डाइपोल दैट मीन्स जेड इज मच ग्रेटर देन ए, तो ए स्क्वायर इज निगलेक्टेड, सो ई जेड इक्वल्स टू 2 के पी अपॉन जेड क्यूब इंटू आर कैप. सिमिलरली यहाँ पर एक मैग्नेटिक डाइपोल है, मतलब कि बार मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विच इज़ अगेन अरेंज अलॉन्ग दी जेड एक्सिस. तो ये पोल स्ट्रेंथ, ये नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, ये पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. बराबर, यहाँ पर फिर से कोई पॉइंट होगा P, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज बी जेड वेक्टर इक्वल टू म्यू 0/4 इंटू 2m जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दी होल स्क्वायर इंटू आर के. For a short dipole as that is z is much greater than L, so Bz can be written as mu 0/4 pi into 2m upon z cube into r cap. Clear? चलिए नेक्स्ट. अब मैंने बताया था कि z एक्सिस डाइपोल का एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा इक्वेटर. तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो ई एक्स वेक्टर इज माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू आर कैप. ये इक्वेटर का फॉर्मूला था. एंड फॉर शॉर्ट डाइपोल ए स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा, तो ई एक्स वेक्टर इक्वल्स टू माइनस के पी बाई एक्स क्यूब इंटू आर वेक्टर, आर कैप सॉरी. तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दैट इज इक्वेटर इज गिवन एज बी वेक्टर इक्वल टू माइनस म्यू 0/4 पाई इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू आर कैप. So for short dipole x is much greater than L, तो L square is neglected, तो bx vector equals to minus mu 0/4 pi into m upon distance cube यानी x cube into r cap. ठीक है. अब ये जो x एक्सिस के फॉर्मूला लिखा वही तो y एक्सिस के लिए भी वैलिड हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन इक्वेटर है. तो ई वाई वैक्टर इक्वल्स टू माइनस के पी अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू आर कैप. एंड फॉर शॉर्ट डाइपोल दैट इज वाई इज मच ग्रेटर देन है, तो ई वाई वैक्टर इक्वल्स टू माइनस के पी बाई वाई क्यूब इंटू आर कैप. तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस दैट इज इक्वेटर इज गिवन एज बी वाई वैक्टर इक्वल्स टू माइनस म्यू 0/4 पाई इंटू एम अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू आर कैप. For a very short dipole that is y is much greater than L, तो by vector equals to minus mu 0/4 pi into m upon y cube into r cap. Clear? चलिए फिर 16th प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स अ नेगेटिव. पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा. जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज लूप इनसाइड द बार मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द बार मैग्नेट इज नॉर्थ टू साउथ. देखिए ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल से ये बाहर निकला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है और अंदर हुए साउथ से नॉर्थ जाएगा. सिमिलरली ये नॉर्थ से निकला साउथ में गया और साउथ से नॉर्थ में जाएगा. ठीक है. फिर 17th पॉइंट है रिलेटिव परमिटिविटी इज म्यू आर इक्वल टू म्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0, सॉरी म्यू आर एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0, जबकि यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू 0. फिर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो हमने पढ़ा था चाई ई इक्वल्स टू -1 प्लस एप्सिलॉन आर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा चाई एम इक्वल्स टू -1 प्लस म्यू आर. ठीक है. फिर ये 19th पॉइंट अगर हम देखें तो दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रो ई इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर. तो यहाँ पर आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रो बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 म्यू 0. नेक्स्ट 20th पॉइंट इज
when electric dipole is placed in uniform electric field, it will perform an SHM. तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ पी ई बाय आई, वेर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Similarly, when magnetic dipole is placed in uniform magnetic field, it performs SHM and it is angular, and its angular frequency is given as omega equal to root of mb by I, where again I is moment of inertia. फिर वही अगर एस एच एम परफॉर्म कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा एफ इक्वल्स टू 1/2 रूट ऑफ पी ई बाय आई. तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इक्वल्स टू 1/2 रूट ऑफ एम बी बाय आई. फिर उसी एस एच एम का अगर टाइम पीरियड मुझे कैलकुलेट करना है तो टी इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ आई बाई पी हो जाएगा. तो यहाँ पर टी इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ आई बाय एम बी हो जाएगा. बराबर. सो दिस आर दी 22 comparison points between electric parameters and magnetic parameters. Clear all of you?